Very good morning, student. Dear student, today we take the topic that is the principal value of inverse trigonometric function. So here we have to find that the principal value of inverse trigonometric function can be calculated with respect to their branch value. So let's see. So first of all, we see the table for different inverse trigonometric function which represent its principal value branch. So we can take sine inverse. First of all, sine inverse function. Then we take cos inverse function, tan inverse function, and remaining three, that is the cosec, inverse, sec inverse, and cot inverse. So as you know, these main 6 trigonometric ratios are there. That's why we have 6 inverse trigonometric functions. Now here we have to see the domain and range of these ones. So as we have already discussed in the previous video, that the domain of the sine inverse is -1 to 1 and its range is -π/2 plus π/2. And for cos inverse, the domain is set, but range is 0 to pi. Here we can see the bracket also close bracket because value is pi and 0 as pi. Now for tan inverse, the domain will be all real. You can take any real number, but principal value branch will be -π/2, π/2, except π/2. -π/2 to plus π/2, and this is the open bracket. You may use here open, not close, because at -π/2 and π/2 value of tan inverse does not exist. Then we have cosec inverse. For that, r domain except -1 and 1. Clear? And range will be from -π/, close interval, -π/2, π/2 except 0. Sec inverse, r except -1 to 1, 0 to pi, except π/2. Pi, this is also closed. Clear? So this is the for sec inverse. Then we have cot inverse. R, domain of cot inverse is R, and range will be open interval 0 to pi. तो ये आपको टेबल याद रखना है whenever we are solving the inverse trigonometric function. तो जितने भी आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, किसी भी तरह की आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो आपको ये टेबल माइंड में रखनी है। क्यों रखनी है? क्योंकि इनवर्स फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब आपका डोमेन और कोडोमेन फॉर स्पेसिफिक फंक्शन वी हैव गिवन द रेंज। इसी रेंज में आपका कैलकुलेशन चलेगा। अगर आपका थीटा या एक्स है इससे बाहर चला जाता है तो वो कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं होगी, बिकॉज एट दैट पॉइंट एनी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। और जब सॉल्व करने के बाद में आपकी वैल्यू आएगी, रेंज विल बी इन दीस इंटरवल्स। तो जो भी आप अगर साइन इनवर्स का कर रहे हो तो यहाँ आएगी, कॉस इनवर्स का कर रहे हो दी आएगी,
तो ये रेंज आना जरूरी है। तो आपको टेबल याद रखनी है कि कौन सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस रेंज में डिफाइन करेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए ध्यान रखना है, प्रिंसिपल वैल्यू है वो इन क्लास के अंदर रहनी चाहिए, राइट। अगर इन क्लास से कोई बाहर है तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, और जब फंक्शन डिफाइन नहीं होगा या एग्जिस्ट नहीं होगा तो आपका कैलकुलेशन नहीं वैलिड माना जाएगा, आप करते जाओगे लेकिन गलत है, right? So whenever you are solving any problem regarding the inverse trigonometric function, it is necessary that you should notice always the domain and range of the specific given inverse function. ठीक है, अब इसको याद रखना बहुत आसान है। देखिए साइन इनवर्स का डोमेन सेम है और बाकी सबका डोमेन सेम, सब रियल है, एक्सेप्ट वो पॉइंट है जहां पर वो फंक्शन डिफाइन नहीं करता है, तो दो ही डोमेन है। अब रेंज भी मेन दो तरह का ही है। देखिए साइन इनवर्स का क्लोज इंटरवल -π/2 π/2, कॉस इनवर्स का 0 to π4। अब ये अब इसमें क्या, जैसे साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक, तो जो साइन की रेंज है वही कोसेक की, सिर्फ एक पॉइंट एक्सेप्ट करना आपको कि इस पे डिफाइन नहीं है। सिमिलरली cos का इनवर्स sec होता है, तो sec और cos की वही है, एक्सेप्ट इस पे ये डिफाइन नहीं होता है, इसलिए कि हम दोनों सेम है। अब देखिए tan क्या होता है, sin अपॉन cos, तो जो sin की है वो tan की है, बस आपको क्लोज से ओपन करना, क्योंकि tan π/2 या -π/2 इज नॉट डिफाइंड। इसी तरह से cos अपॉन sin cot होता है, तो जो cos का रेंज है वही इसका cot का, बस आपका ब्रैकेट। तो कुल मिला के दो तरह की रेंज है और दो तरह का डोमेन, बस माइनर आपको ध्यान रखना है कि कहाँ ओपन है, कहाँ क्लोज है और कहाँ फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो अगर आपने 11th क्लास में अच्छी तरह से थर्ड चैप्टर देखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ पर डिफाइंड नहीं है। सो दैट यू हैव टू टेक एक्शन, क्लियर। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टेबल यू हैव टू बी रिमेंबर ऑलवेज। जैसे 10th में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टेबल स्टैंडर्ड एंगल की याद की थी, उसी तरह से ये भी टेबल इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छी तरह से लर्न कर लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे आते हैं। अभी सीबीएसई में एक आएगा ये 2 मार्क्स का, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे डायरेक्ट वैल्यू से। अब हम इसकी प्रॉब्लम कैसे करेंगे, अब यहाँ पर एक दो पॉइंट और दे रखे हैं, साइन इनवर्स एक्स शुड नॉट बी कंफ्यूज। अब जैसे हमने लिख दिया साइन इनवर्स एक्स, ऐसा नहीं, इसका मतलब ये है sin x power -1, both are different thing। sin x power -1/2 that is 1 by sin x, but this is the inverse function। ये क्योंकि हम लोग जब छोटी क्लास 9-10 में पढ़ते थे तो ये सिखाया था आपको कि ये दोनों सेम है, ऐसा बताया था, sin स्क्वायर x देखो या sin x होल पावर 2, both have same meaning but yet they have different। sin inverse x not equal to sin x power -1/2, so point to be noted as similarly for other। और बाकी का भी यही है, cos inverse लिखो या tan inverse, cosec, sec, कोई भी लिखो, ये सभी में ट्रू है। Whenever no branch of any inverse trigonometric function is mentioned, किसी भी अगर प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की कोई भी प्रॉब्लम जब हम लोग सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है कि किसके लिए सॉल्व करना, उसका मतलब वैल्यू हमको कौन सी रहे, क्योंकि जब हमने पढ़ा ये साइन इनवर्स का, ये तो प्रिंसिपल वैल्यूज है, ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो इसकी अदर ब्रांच भी हो सकती, वहां भी वैल्यू आ सकती, लेकिन जब आपने क्वेश्चन के अंदर कोई ब्रांच नहीं दे रखी है, देन इट इज अंडरस्टैंडेबल, इट इज ऑलवेज
प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यानी ये वाली आपको कंसीडर करनी है। अगर नहीं दे रखी और दे रखी है कोई रेंज तो उसके अनुसार कैलकुलेशन शुड बी डन। The value of an inverse trigonometric function which lies in the range of principal branch is called the principal value of the inverse। तो इसके अंदर जो भी इनकी वैल्यू लाई करेगी किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, सो दैट इज नोन एज प्रिंसिपल वैल्यू। उसको हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल वैल्यू। जैसे आपको कह दे फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2, ठीक है ना, तो आपको इस रेंज के अंदर किस पॉइंट पे साइन इनवर्स की वैल्यू 1/2 है, दैट वी हैव टू फाइंड। नाउ वी लर्न हाउ टू फाइंड दैट वन। तो इसके लिए आपको जो 11th में टेबल बनाई थी स्टैंडर्ड एंगल की, वो आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, या 10th वाली भी आनी चाहिए, ठीक है ना। और नहीं आ रही तो आपको लर्न कर लेनी। लाइक सी एग्जांपल फर्स्ट, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, फर्स्ट इज फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है साइन इनवर्स 1/, इसकी वैल्यू निकालनी, साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू क्या होगी, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो इसको निकालने का तरीका क्या है? व्हाटएवर वी वांट टू फाइंड दैट वी पुट एज ए y। सो लेट हमको क्या निकालना है? साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू, दैट इज इक्वल टू y। Now we already know when we are removing this sine inverse function, it will be transferred to the right side। ये मैं स्टार्टिंग में आपको बताया फॉर्मूला। So we can write 1/√2 is equal to sine inverse इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? Sine means what? Here we learn how to convert inverse trigonometric function into ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहला काम जब भी आप कैलकुलेशन करोगे तो क्या करना है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हटाना है और ट्रिग्नोमेट्री में लाना है। और जैसे ही आपका फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री में आ गया, देन वी यूज व्हाटएवर फार्मूला और मेथड और प्रॉपर्टीज और वैल्यूज वी हैव यूज्ड इन द क्लास 11। अब आपका ये 11th आ गया। साइन y की वैल्यू कहां पर 1/√2 होगी, ठीक है ना। साइन y की वैल्यू 1/√45 पे होती है या फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और साइन पॉजिटिव कहाँ होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में, तो π/2 + π/4 भी होती है। लेकिन हमको पूछा गया है प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स की क्या है? -π/2 to π/2। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या, आपको दो चीजें याद रखनी है। पहले हमारी रेंज क्या है, यानी किसमें चाहिए ये। दूसरी बात है कि साइन के कौन से एंगल पे वैल्यू 1/2, बस दोनों को मैच करना है, राइट। सो वी नो दैट रेंज, वी नो द range of principal value branch of sin inverse x is -π/2 π/2। इस रेंज में आपको वैल्यू लेनी है साइन की, और वैल्यू क्या आनी चाहिए? 1/2। अब 1/√2 किसका होता है? साइन π/4। ये दो चीजें देखनी बस, किस एंगल पे उसकी वैल्यू 1/√2 होनी चाहिए और वो एंगल इस रेंज में आना चाहिए। नाउ यू कैन से इस -90 to +90, तो क्या ये 45 बीच में आता है? द एंगल π/4 इज लाइज बिटवीन -π/2 एंड π/4।
1 by root 2 थे इन दोनों में, so 1 में भी राइट यार sin y equal to sin pi by 2. Now remove sin on both sides, so finally what we get y equal to y, और y क्या है हमारा, y is good sin inverse 1 upon, so we get the value of y at this, therefore our answer will be sin inverse 1 upon root 2 is equal to pi by 4. So in this way one can find the values. Now similarly we see next problem. Is there any doubt in this? Second one says find the principal value of cot inverse. This we change as cot inverse minus 1 upon root 3. Right? So we follow the same procedure or method. तो क्या करेंगे, सबसे पहले let whatever we are given that equal to y, जो भी निकालना है आपको उसको इक्वल टू y पुट कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करोगे तो इनवर्स कैन बी रिमूव, सो माइनस 1 बाय रूट 3 इक्वल टू cot y। तो ये cot y की वैल्यू आ गई, राइट। नाउ वी हैव टू रिमूव दिस नेगेटिव साइन। अब आपको क्या करना है, ये नेगेटिव साइन हटाना है, ठीक है। तो देखिए cot y की वैल्यू कौन से एंगल पे 1 बाय रूट 3 होती है पहले, दैट इज पाई बाय 3। so we can minus it already there and we write cot pi by 3, value of cot pi by 3 is 1 upon root 3। अब इस क्योंकि हम हमारे पास क्या आ गया है, and principal branch value of the cot inverse, the cot की क्या है, principal branch value see here called 0 to pi, so we are getting here what, minus 1 by root 3 equal to cot y, 1 upon root 3 you can replace as cot pi by 3 as you know, cot की वैल्यू है pi by 3, बट वी कैनॉट रिमूव द कॉट। अब आपको यहाँ पर एक नई प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ से दोनों साइड से कॉट नहीं हटा सकते क्योंकि यहाँ माइनस कॉट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिमूव द माइनस, एज यू नो दैट इन सेकेंड पार्ट दैट कॉट इज नेगेटिव, दैट्स व्हाई यू मे राइट कॉट पाई माइनस पाई बाय 3, cot pi minus theta equal to minus cos theta in 11th class you already learned, so cot pi minus pi by 3 is always equal to minus cot pi by 3। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, कितना वैल्यू आ जाएगा, cot pi minus pi cot 2 pi by 3, so now this value is equal to cot y। अब यहाँ पे दो चीजें आपको देखनी है, पहली चीज तो ये कि दोनों साइड से एक जैसा आ रहा है ऑपरेटर, cot आ रहा, सो cot कैन बी रिमूव, लेकिन जैसे ही आप cot रिमूव करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 पाई बाय 3। अब चेक करना आइदर 2 पाई बाय 3 इज बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल वैल्यू और नॉट, 0 से पाई के बीच में अगर क्या ये 0 से पाई के बीच में 2 पाई बाय 3, चेक आउट, भाई पाई से छोटा ही है, भाई पाई बाय 2 पाई यानी कितना हो गया 360 डिवाइड बाय 3 120,
So 120 lie between 0 and 180. Very easy. So this is lying in the class of the principal value of x. So our answer will be y. Y means cot inverse. So finally you can say cot inverse minus 1 by root 3 is equal to 2 pi by 3. So dear students, this is very important how to find the principal value. So these are only we have discussed 2 examples, and remaining example we can see, like see exercise question number first, साइन इनवर्स। आपका जी जैसे साइन का आ रहा, साइन का हमने अभी किया था तो आप कर सकते हो। जैसे कॉस का ले लेते सेकंड वाला, इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos inverse root 3 by 2, तो सेम प्रोसेस यू हैव टू फॉलो। प्रोसेस यही रहेगा, then we write here cos inverse root 3 by 2 equal to y equal to cos root 3 by 2 equal to cos y। अब इसकी cos की प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या होगी? 0 to pi, that is same as cot, but here we have close bracket. Now we have to check at what angle the value of cos y is root 3 by 2. Root 3 by 2 कहाँ पर होगा cos का? pi by 3. So this root 3 by cos y equal to cos root 3 by 2. So now this cos y equal to cos pi by 3. Right? So now you can remove both, but you have checked. Before removing, you always check either this pi by 3 lying in this or not. Yes? So we can say y equal to pi by 3. So this is our answer, principal value of the cos inverse. Right? So in this way you can solve a practice. अब ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है और आपको टेबल कितना अच्छा याद है। जो 11th में हमने बार-बार इसलिए कह रहा, थर्ड चैप्टर के जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको अच्छी तरह लर्न कर लोगे नहीं कुछ भी नहीं। देखो यहाँ का काम सिर्फ इतना ही है, cos इनवर्स का इसको हमने हटा दिया, बस cos में आया। जैसे ही आ गया आपको 11th क्लास में जाना पड़ेगा इनटू द प्रोसेस 11th का 12th का, फिर सिर्फ ये याद रखना रेंज क्या, बस दो चीजें, एक रेंज क्या है और इनवर्स हटाना, बस। बाकी आपने 11th में लर्न किया वो सब काम में आ गया। सो यू कैन प्रैक्टिस दिस एक्सरसाइज 2.1। So this is all about today's class. Thanks for watching. Have a nice day.